Hello guys, welcome to Network Home. My name is Siddharth and I am here to introduce what is networking to you guys. Network Home is India's leading Cisco authorized networking academy. Network Home is a company that focuses on high-end IT training in the field of internet networking, which is connecting different types of devices to each other. Our focus is to train people in India to take them from no knowledge in IT field to the highest level certification that Cisco offers, which is called Cisco Certified Internet Network Expert Certification. CCIE is the highest level certification and globally recognized IT certification offered by Cisco system since last 20 years. CCIE engineers are always in demand in IT giants like Cisco, TCS, Orange, HCL, Tech Mahindra, Wipro, Infosys, Accenture, Arisent, Array Network, 3i Infotech, Dimension Data, IBM and CSS Corp. Network Home already have tie-up with all these companies, and from Network Home there are 100 plus students are already placed in multinational IT companies in India and overseas. In this particular field in India right now there are more than 10,000 people that are certified. Our objective is to take people that have little bit or no background in networking field to take them from entry level to expert level. Upon completion of the entry level or expert level certification, we are giving them guaranteed job assistance. Cisco certified entry level to expert level salary package drawn by freshers start range from 2 lakhs to up to 12 lakhs per annum, included Cisco certification and or Network Home in collaboration with Cisco certification. In order to get this offer, they need to have a minimum of bachelor's degree in any other field, because in order to get a job in India you need to have a bachelor's degree at least. In the term of technical expertise, we really don't require anything from them, even if they have done a bachelor's degree in science or art or engineering, as it's okay. So it's all about the Network Home. If you want to download this booklet, आप हमारे वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज आई विल गिव यू द QR कोड, वहाँ से भी आप स्कैन करके इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हो. इफ़ यू वांट टू विजिट अवर फेसबुक पेज पे जाके भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे. देयर आर टेस्टिमोनियल वीडियो टेस्टिमोनियल्स भी है, वो भी आपको आराम से मिल जाएंगे. ठीक है, सारे इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी आपको बता दी हैं. अब ये ट्रैक्स कौन से हैं, इफ़ यू वांट टू गेट अ डिटेल इन्फॉर्मेशन आप cisco.com पे जाके भी वहाँ से इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हो. So we have to start from the entry level certification, that is the CCNA. Okay, so start with the CCNA, the fresh CCNA. Okay, तो सबसे पहले हम देखेंगे CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग, जो कि अभी अपग्रेड हुआ है CCNA एंटरप्राइज में. तो बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज इवॉल्व हुई है जो कि CCNA राउटिंग स्विचिंग में नहीं थी. अब CCNA एंटरप्राइज में इन्होंने बहुत ही ऐड किया है. टेक्नोलॉजीज के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे ही, बट उससे पहले आई एम गोइंग टू कॉन्ग्रेचुलेट फॉर ऑल ऑफ दोज गाइज जो लास्ट कपल ऑफ मंथ्स में प्लेस हुए हैं एक मल्टीनेशनल IT कंपनीज में, जिनका प्रमोशन हुआ है. कुछ कैंडिडेट्स ने कंपनीज को स्विच भी किया है और उनको वहाँ पे जाके अच्छी खासी पैकेज प्लस अच्छी खासी प्रमोशन भी मिली है, प्रोफाइल भी उनकी बढ़ गई है. और मैं उन सभी कैंडिडेट्स को भी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा जो अभी ट्राई कर रहे हैं, जिनका फर्स्ट राउंड ऑलमोस्ट क्रैक हुआ है, सेकंड राउंड के लिए वो सिलेक्ट हुए हैं. ठीक है, सो CCNA राउटिंग स्विचिंग और यू कैन कॉल द CCNA एंटरप्राइज, जिसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. एक पार्ट होगा आपका फ्री बूट कैम्प, जो ऑलमोस्ट 10 to 15 डेज का रहेगा. इससे पहले वो 8 से 10 दिन में ख़त्म हो जाता था, क्योंकि ऑलमोस्ट 8 टॉपिक्स थे. अभी ये इंक्लूड होके ऑलमोस्ट 30 टॉपिक्स हुए टोटल, 30 to 31 शायद ऑलमोस्ट 31 है. तो मैंने फ्री बूट कैम्प रखा है उन कैंडिडेट्स के लिए जो फैमिलियर है, जो फैमिलियर नहीं है, ताकि उनको एक आइडिया आ जाए कि नेटवर्किंग एग्जैक्टली क्या है और हम आगे क्या बढ़ने वाले हैं. ओके, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क फंडामेंटल से, जो कि ऑफकोर्स फ्री है. अब इसमें से हम क्या क्या देखने वाले सबसे पहले वो देख लेते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू द नेटवर्क. इंट्रोडक्शन टू द नेटवर्क में सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज़ द नेटवर्क. उसके बाद हम देखेंगे स्टेटमेंट्स. उसके बाद हम देखेंगे एप्लीकेशन एरियाज,
मतलब आप नेटवर्क किस लिए यूज़ करते हो। इसके बाद हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेट की हिस्ट्री एग्जैक्टली क्या है, एप्लीकेशन एरियाज ऑफ द नेटवर्क क्या है, और उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ द नेटवर्क, ओके, जिसमें हम देखेंगे वायर्ड या फिर वायरलेस या फिर हम देखेंगे हाइब्रिड, ओके। देन नेक्स्ट हम मूव करेंगे विच इज़ द नेक्स्ट टॉपिक है आपका नेटवर्क टाइप्स। नेटवर्क टाइप्स आपको पता ही होंगे, आपके स्कूल्स कॉलेजेस में भी पढ़ा होगा, कंप्यूटर सेक्शन में या फिर आईटी सेक्शन में। पर्सनल एरिया नेटवर्क हम देखेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। उसमें हम दो पार्ट देखेंगे एक्चुअली, एक देखेंगे प्राइवेट मैन और दूसरा देखेंगे पब्लिक फैन, ओके। थर्ड थिंग जो है वो है आपका टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज। आपको ये भी फैमिलियर होंगे, जो कैंडिडेट्स फैमिलियर उनको पता होगा टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी में क्या क्या है। फर्स्ट हम देखेंगे लॉजिकल एंड द फिजिकल एज वेल। तो लॉजिकल, व्हाट इज़ द लॉजिकल कंसेप्ट, जो लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन होगा, और फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन के हम फिजिकल कुछ टाइप्स देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे बर्स्ट टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, FTTI, मेश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी एंड द हाइब्रिड टोपोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे OSI रेफरेंस मॉडल, जो कि दैट वाज द इम्प्लीमेंटेड बाय द इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ISO ने जो बनाए थे। इसमें हम देखेंगे नेटवर्क रेफरेंस मॉडल्स देखेंगे, उसकी नीड देखेंगे, उसका लेयर अप्रोच देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे अपर लेयर और लोअर लेयर OSI रेफरेंस मॉडल्स कौन से हैं, जस्ट लाइक द एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल, ओके। साथ ही साथ हम देखेंगे एनकैप्सुलेशन एंड लेयर कम्युनिकेशन किस तरीके से होता है, प्लस हम देखेंगे OSI रेफरेंस मॉडल्स, PDUs, एनकैप्सुलेशन प्रोसेस एंड कन्वर्जन टेबल। नेक्स्ट हम देखेंगे TCP/IP मॉडल्स, ओके, दैट वाज द इम्प्लीमेंटेड बाय DoD, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। इसमें हम देखेंगे TCP और OSI बीच में कन्वर्जन देखेंगे, TCP/IP मॉडल्स के PDUs देखेंगे। उसके हम देखेंगे लेयर्स लाइक एप्लीकेशन, होस्ट टू होस्ट, इंटरनेट एंड द नेटवर्क एक्सेस, दिस इज कॉल्ड लिंक एक्सेस, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रांसमिशन एंड द नेटवर्क मीडिया। ट्रांसमिशन नेटवर्क मीडिया हम देखेंगे व्हाट इज़ द सिंप्लेक्स, व्हाट इज़ हाफ डुप्लेक्स, व्हाट इज़ फुल डुप्लेक्स, हाउ CSMA/CD इज इम्प्लीमेंटेड, व्हाट इज़ द डुप्लेक्स मिसमैच, स्पीड एंड द डुप्लेक्स ऑटो नेगोशिएशन, व्हाट इज़ सिग्नल्स, उसमें हम देखेंगे एनालॉग एंड द डिजिटल सिग्नल्स, व्हाट इज़ मोडेम, मॉड्यूलेशन देखेंगे हम, डीमॉड्यूलेशन देखेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे बैंडविड्थ, थ्रूपुट, लैटेंसी, मल्टीप्लेक्सिंग, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट देखेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे चेकसम, टाइम टू लिव एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस, ओके। नेक्स्ट जो है वो है आपका नेटवर्क कंपोनेंट। नेटवर्क कंपोनेंट में बेसिकली नेटवर्किंग में यूज़ करने वाले डिवाइसेस, बहुत सारे डिवाइसेस हैं। इसमें हम वो सारे डिवाइसेस पढ़ेंगे जो कि अभी आपको बहुत ज़रूरी है, और जो कि वो भी डिवाइसेस देखेंगे जो अभी यूज़ नहीं करने, मतलब जो अभी यूज़ नहीं करते। इसमें हम देखेंगे हब्स। सबसे पहले हब्स में हम देखेंगे हाउ हब्स वर्क, हाउ हब इज़ वन कोलिजन डोमेन एंड द वन ब्रॉडकास्ट डोमेन। उसके बाद हम देखेंगे ब्रिजेस। उसके बाद हम देखेंगे लेयर टू स्विच, क्योंकि OSI रेफरेंस मॉडल्स में आपको ऑलमोस्ट बता दूंगा कि कौन से लेयर पे कौन सा डिवाइस जो है वो काम करता है। तो इसमें हम देखेंगे लेयर टू स्विच ब्रॉडकास्ट टर्म्स, लेयर टू स्विच फॉरवर्डिंग मेथड्स। इसमें हम देखेंगे फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस, आपका कैम टेबल। देन हम देखेंगे लेयर 3 डिवाइस विच इज़ कॉल्ड द राउटर। राउटर्स के भी हम लेयर्स देखेंगे विच वी आर गोइंग टू सी द एक्सेस लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर एंड द कोर लेयर, ओके। उसके बाद हम देखेंगे लेयर 3 स्विच, दैट द लेयर 3 स्विच इज एक्टिंग एज लाइक अ लेयर 2 एज वेल एज लेयर 3, बट सारी फंक्शनैलिटीज लेयर 3 स्विच में राउटर की तरह नहीं होगी। लेयर 3 स्विच एक्टिंग एज लाइक अ राउटर, बट एक लिमिटेड मैं कहूँगा लिमिटेड पॉइंट तक ही वो वर्क कर सकता है, 100% राउटर की कैपेबिलिटीज़ नहीं रखता, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे लेयर 2 स्विच और लेयर 3 स्विच के बीच में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है। अब ये बात कर रहे थे हम लेयर्स की, ओके। लेयर 2 लेयर 3 तक की हम बात कर रहे थे। उसके बाद हम देखेंगे मल्टी लेयर स्विच, जो अप टू लेयर 4 लेयर 7 तक किस तरीके से यूज़ किया जाएगा वो भी हम देखेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे मल्टी लेयर स्विच एंड क्वालिटी ऑफ सर्विसेज का इम्प्लीमेंटेशन। उसके बाद हम देखेंगे ब्रांड न्यू डिवाइसेस फ्रॉम द सिस्को विच इज़ कॉल्ड सिस्को नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, ओके। ASA का अपग्रेडेड वर्जन है फायरवॉल में, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में, विच इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ फायरवॉल एंड द IPS एज वेल।
उसी को हम कहेंगे फायर पावर। ओके, फायर पावर में हम देखेंगे एफटीडी फायर सेट थ्रेड डिफेंस किस तरीके से है। इसके हम देखेंगे नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के प्रॉपर्टीज़, उसके बेनिफिट्स। नेक्स्ट जनरेशन आईपीएस भी हम देख रहे हैं, उसके भी हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, उसके प्रोडक्ट की सीरीज़ देखेंगे, इसके भी बेनिफिट्स देखेंगे। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी आर्किटेक्चर। अब टोपोलॉजी के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया था, बट हम इस नए इम्प्लीमेंटेशन में देखेंगे किस तरीके से सिस्को कैंपस नेटवर्क डिज़ाइन किया जाता है, किस तरीके से आपका डेटा सेंटर जो है वो इवॉल्यूट हुआ है, हाउ वर्चुअल पोर्ट चैनलिंग इज़ वर्किंग, हाउ वीपीसी लेयर 2 टेक्नोलॉजी क्या है, वीपीसी की लेयर 3 टोपोलॉजी क्या है, लेयर 2 एंड लेयर 3 टोपोलॉजी क्या है। उसके बाद हम देखेंगे आपके लेयर्स, उसमें हम देखेंगे कोर लेयर देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर देखेंगे, एक्सेस लेयर देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे 2 टायर नेटवर्क आर्किटेक्चर, 3 टियर नेटवर्क आर्किटेक्चर, 3 टियर नेटवर्क आर्किटेक्चर, उसके लिमिटेशन। उसके बीच में उसके बाद हम देखेंगे 2 टियर एंड द 3 टियर नेटवर्क आर्किटेक्चर के बीच में का डिफरेंस। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वर्जन ऑफ द आर्किटेक्चर विच इज़ कॉल्ड स्पाइन एंड लीफ आर्किटेक्चर। उसके बाद हम देखेंगे स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस आर्किटेक्चर। उसके बाद हम देखेंगे क्लाउड टेक्नोलॉजीज। ओके, क्लाउड टेक्नोलॉजीज में हम देखेंगे ऑन प्रीमाइसेस सर्विसेज क्लाउड एंड सॉफ्टवेयर बेस्ड सर्विसेज। ओके, क्लाउड कंप्यूटिंग में हम देखेंगे पब्लिक क्लाउड एज वेल एज योर प्राइवेट क्लाउड। देन हम देखेंगे वैन टोपोलॉजी। वैन टोपोलॉजी में हम सबसे पहले हिट करेंगे उसके टाइप्स, व्हाट इज़ द पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी। उसके बाद हम देखेंगे हब एंड स्पोक टोपोलॉजी। उसके बाद देखेंगे फुल मेश वैन टोपोलॉजी, और उसके बाद हम देखेंगे डुअल होम वैन टोपोलॉजी। उसके बाद हम देख रहे हैं वैन टेक्नोलॉजीज। वैन टेक्नोलॉजी में हम देखेंगे फर्स्ट फिजिकल लेयर टेक्नोलॉजी, देन हम देखेंगे वैन, देन हम देखेंगे सर्किट स्विचिंग किस तरीके से किया जाता है, पैकेट स्विचिंग क्या है, सेल स्विचिंग क्या है, व्हाट इज़ योर लीज लाइन्स, what is the interfaces on the Cisco router which is called the serial interfaces, what is the TTE, what is the TCE, what is E1 lines, what is the frame relay and the DSL stand for the digital subscriber line, what is the cable internet and the ethernet के बारे में हम देखेंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे इंटरनेट एक्सेस टेक्नोलॉजी। उसमें हम देखेंगे डीएसएल के टाइप्स, डीएसएल के आर्किटेक्चर, केबल इंटरनेट टेक्नोलॉजी, मोबाइल इंटरनेट, फाइबर इंटरनेट एंड द सैटेलाइट इंटरनेट। नेक्स्ट हम देखेंगे द इंटरनेट एंड द डीएनएस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है व्हाट इज़ द इंटरनेट, इसमें हम पढ़ रहे हैं। उसमें हम देखेंगे उसके बेसिक सर्विसेज, उसके प्रोटोकॉल्स। उसके बाद हम देखेंगे डीएनएस और उसका डीएनएस कम्युनिकेशन प्रोसेस किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे सर्वर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें हम देखेंगे डीएचसीपी सर्वर, डीएनएस सर्वर, एचटीटीपी सर्वर, एचटीटीपीएस, एफटीपी, टीएफटीपी, एसएफटीपी, एससीपी, ईमेल सर्वर्स, पीओपी, आईमैप, एसएमटीपी एंड द एसएनएमपी सर्वर। अब ये जो सारे सर्वर्स है इसका थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल सेशंस भी देखेंगे, बट नॉट ऑन दिस प्री सेशन, पेड सेशन में हम प्रैक्टिकल सेशंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट जो है द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज़ कॉल्ड द केबल्स। ओके, अब तक जो हम डिवाइसेस की बात कर रहे थे, सो हाउ यू कैन गोइंग टू कनेक्ट टू राउटर और राउटर टू स्विच और राउटर टू फायरवॉल टू स्विच, राउटर टू योर पीसी, किस तरीके से कनेक्ट करना है उसके बारे में हम देखेंगे इन द सेगमेंट ऑफ द नेटवर्क केबल। नेटवर्क केबल्स में हम देखेंगे उसके टाइप्स, इथरनेट केबल के टाइप्स, कोएक्सियल केबल क्या है, आपका ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होता है, व्हाट इज़ योर फाइबर ऑप्टिक केबल, व्हाट इज़ योर फास्ट इथरनेट केबल, व्हाट इज़ योर गीगा इथरनेट केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल के कलर कोड किस तरीके से है, उसके इंटरफेसेस क्या है, व्हाट इज़ द स्ट्रेट थ्रू केबल, व्हाट इज़ क्रॉस ओवर, व्हाट इज़ रोल ओवर, व्हाट इज़ ट्विस्टेड पेयर केबल टाइप्स, what is the RJ45 cable connector, what is the crimping tool, how to make an ethernet cable, serial cable, और उसके टाइप्स भी हम देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे नेटवर्क केबल कनेक्टर्स। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था RJ45 कनेक्टर्स क्या है, उसी तरीके से बहुत सारे कनेक्टर्स है जो नेटवर्क में यूज़ किए जाते हैं टू कनेक्ट द नेटवर्क डिवाइसेस। उसमें हम देखेंगे कोएक्सियल केबल, उसके बाद हम देखेंगे मल्टीपल फाइबर ऑप्टिक कनेक्टर्स, ST दैट इज नो स्ट्रेट ट्रिप कनेक्टर, सब्सक्राइबर कनेक्टर हम देखेंगे, लूसेंट कनेक्टर, FCN MU कनेक्टर, MTRJ कनेक्टर, MTP कनेक्टर्स, हाई परफॉर्मेंस कॉपर कनेक्टर्स। So these are your all network cable connector types. Okay, I know that कि आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में डिफिकल्ट लगेगा, बट जैसे जैसे हम पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली इनके यूजेस क्या क्या है।
नेक्स्ट हम देखेंगे इथरनेट। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको इथरनेट का एक बेसिक कंसेप्ट बताया था कि इथरनेट क्या है। इथरनेट में यहाँ पे हम देखेंगे उसके फीचर्स, उसके एबिलिटीज़, उसके स्टैंडर्ड्स, एंड सबसे इंपॉर्टेंट हम देखेंगे इथरनेट मैक एड्रेस के बारे में। मैक एड्रेस आई होप आपको पता होगा मैक एड्रेस क्या होता है और किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे इथरनेट कोलिजन एंड ट्रबल शूटिंग। इसमें हम देखेंगे व्हाट इज़ योर कोलिजन, हाउ द CSMA सीड इज़ वर्किंग, डिफर्ड एंड कोलिजन काउंटर्स। उसके बाद हम देखेंगे लेट एंड एक्सेसिव कोलिजन्स के टाइप्स। ओके, देन हम देखेंगे पावर ओवर इथरनेट। पावर ओवर इथरनेट इट्स बेसिकली, जैसे मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, इफ़ यू हैव टू इम्प्लीमेंट द CCTV ऑन योर शॉप और ऑफिस, आपको दो केबल्स चाहिए होती है, एक होता है पावर केबल और दूसरा होता है आपका इंटरनेट केबल। व्हाट इफ आई एम गोइंग टू यूज द वन सिंगल केबल टू गिव यू द डेटा एज वेल एज द इलेक्ट्रिसिटी, दैट वाज ऑल इन द पावर ओवर इथरनेट। तो उसमें हम देखेंगे उसके एडवांटेजेस, उसके डिवाइसेस, हाउ टू अपग्रेडिंग योर एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी टू द पावर ओवर इथरनेट, PD एंड द PAC क्या है, व्हाट इज़ द मिड स्पैन, व्हाट इज़ द एंड स्पैन, टाइप्स और उसके स्टैंडर्ड्स लाइक टाइप 1, टाइप 2, 3, 4 और उसके बेनिफिट्स देखेंगे। ओके, देन हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट विच इज़ द मेट्रो इथरनेट। मेट्रो इथरनेट में हम उसके स्टैंडर्ड्स देखेंगे, डेफिनेशन ऑफ द मेट्रो इथरनेट देखेंगे, उसके सर्विसेज देखेंगे, उसके इंटरफेसेस देखेंगे। सर्विसेज में हम देखेंगे बेसिकली E-LAN सर्विस, E-LAN सर्विस, E-Tree एंड द E-Access सर्विस। नेक्स्ट इज़ द TCP एंड द UDP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूजर डेटा ग्राम प्रोटोकॉल। इसमें हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में देखेंगे, विच इज़ बेसिकली द मेन प्रोटोकॉल ऑन द ट्रांसपोर्ट लेयर विच इज़ TCP एंड द UDP। उसके पोर्ट नंबर, उसके सॉकेट्स, एस्टैब्लिशिंग किस तरीके से होता है TCP का कनेक्शन, TCP सेगमेंटेशन एंड सीक्वेंसिंग किस तरीके से की जाती है, व्हाट इज़ द स्लाइडिंग विंडो, व्हाट इज़ द ग्रेसफुल टर्मिनेशन ऑफ द TCP कनेक्शन, what is the TCP header, what is UDP and the difference between TCP and the UDP. नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे नेटवर्क एड्रेसिंग। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नेटवर्किंग, क्योंकि इसमें हम हार्डवेयर एड्रेस देखेंगे, उसका फिजिकल एड्रेस देखेंगे, लॉजिकल एड्रेस देखेंगे, IP क्या होता है वो देखेंगे, IPv4 एड्रेसिंग देखेंगे, हाउ यू कैन कन्वर्ट द डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, बाइनरी टू डेसिमल, एंड व्हाट इज़ द सबनेट मास्क, ये भी हम देखेंगे इस टॉपिक में। नेक्स्ट हम देखेंगे IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, जिसमें आपको बताऊंगा व्हाट इज़ IPv4 एड्रेसिंग, हाउ डज द ऑल IP एड्रेस इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंटिटी, दिस इज कॉल्ड एज IANA। रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्रीज भी देखेंगे, IP एड्रेस के क्लासेस देखेंगे, पैकेट हेडर देखेंगे IPv4 का, उसमें हम देखेंगे पब्लिक IP एड्रेस और प्राइवेट IP एड्रेस क्या क्या है, साथ ही साथ हम देखेंगे रिजर्व्ड IPv4 एड्रेसेस, और दूसरा हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखेंगे दी IPv4 प्रोटोकॉल नंबर। अब ये IPv4 प्रोटोकॉल नंबर उन प्रोटोकॉल्स के लिए जो TCP और UDP के अंडर फॉल नहीं होते हैं। ओके, देन नेक्स्ट हम देखेंगे CIDR स्टैंड फॉर क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। यहाँ पे आप स्लैश नोटिफिकेशन किस तरीके से यूज़ किया जाता है उसके बारे में हम देखेंगे, विच इज स्लैश स्टार्ट 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं अप टू स्लैश 32 तक। ओके, इसमें हम देखेंगे CIDR एड्रेस क्लास वर्सेस सबनेट मास्क, subnet and the broadcast address, and CIDR calculation with their examples and the formula. नेक्स्ट हम देखेंगे IP एड्रेस। IP एड्रेसेस में हम देखेंगे व्हाट इज़ द IP एड्रेस, ये तो ऑलरेडी हम पढ़ेंगे ही, साथ ही साथ हम यहाँ पे देखेंगे व्हाट इज़ क्लास A, व्हाट इज़ क्लास B, व्हाट इज़ क्लास C, व्हाट इज़ क्लास D, इसके यूजेस कहाँ पे किए जाते हैं, उसके लिमिटेशंस क्या क्या, ये भी हम देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे ARP एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ओके, सो किस तरीके से एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल काम करता है, रिजोल्विंग द लॉजिकल एड्रेस टू द हार्डवेयर एड्रेस, व्हाट इज़ द ARP टेबल, ARP प्रोटोकॉल पैकेट एंड ARP ऑपरेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ICMP में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हम देखेंगे लैब सेक्शन में, ट्राई करूंगा यहाँ पे आपको एक लैब के थ्रू आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि हाउ एक्चुअली ICMP इज़ वर्क, ICMP के मैसेजेस क्या क्या होते हैं, इसका हेडर फॉर्मेट क्या है, व्हाट इज़ एको रिक्वेस्ट एंड द एको रिप्लाई, हाउ टू ट्रबल शूट द IP यूजिंग द ICMP, हाउ यू गेट द डेस्टिनेशन अनरीचेबल मैसेज, व्हाट इज़ द ट्रेस राउट, ये सारी चीज़ें हम ICMP में पढ़ रहे हैं। देन हम देखेंगे प्राइवेट IPv4 एड्रेसिंग। ओके, तो प्राइवेट IPv4 एड्रेसिंग में हम A क्लास, B और C क्लास को भी इंक्लूड कर रहे हैं, साथ ही साथ हम नेटिंग टेक्नोलॉजी में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो किस तरीके से पब्लिक प्राइवेट IP एड्रेसिंग की जाती है विद द हेल्प ऑफ द नेटिंग। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे सबनेटिंग का। सबनेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग मल्टीपल स्मॉल नेटवर्क फ्रॉम द सिंगल लार्ज नेटवर्क।
तो इसमें हम सबनेटिंग देखेंगे, बेसिक एग्जांपल्स देखेंगे, सबनेटिंग के स्टेप्स देखेंगे। हम ए, बी और सी क्लास के साथ सबनेटिंग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सी क्लास। सी क्लास के साथ देखेंगे किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसके एग्जांपल्स भी देखेंगे। यही सेम एग्जांपल हम बी और ए क्लास के साथ भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी बताए, ये सारा फ्री बूट कैंप के पार्ट में रहेगा। इसके बाद भी मैं बहुत सारे बूट कैंप्स यहाँ पे कंडक्ट करूँगा, दिस इज़ नॉट ओनली फॉर द CCNA बट अप टू CCNP, IPM, CCI सारे लेवल्स के लिए होंगे। बट ये जो नेक्स्ट बूट कैंप्स मैं यहाँ पे कंडक्ट करूँगा वो अभी नहीं होंगे, वो थोड़े से जैसे आप थोड़े मैच्योर हो जाओगे, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जैसे आपको आ जाएगा, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ जाएंगे। जैसे लाइक फर्स्ट हम देख रहे हैं इंटरनेट ऑफ थिंग के बारे में, जिसमें हम देखेंगे IoT टेक्नोलॉजी स्टैक, IoT स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स, IoT securities. Then next we are going to see the edge and the FOG computing. Next हम देखेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। दैट वाज द रिसेंटली अपग्रेडेशन हुए इसमें बहुत सारे, और ये अभी भी बहुत जगह पे यूज़ किया जाता है। न्यू इम्प्लीमेंटेशन भी कह सकते हो, जैसे जस्ट लाइक द AWS, अमेजॉन वेब सर्विसेज, क्लाउड सर्विसेज किस तरीके से की जाती है इम्प्लीमेंटेशन, माइक्रोसॉफ्ट की भी है, वो भी हम पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे फर्स्ट सिस्को डिप्लॉयमेंट मेथड, सिस्को क्लाउड मॉड्यूल्स, सिस्को परफॉर्मेंस स्केलेबिलिटी एंड हाई अवेलेबिलिटी, सिस्को सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशंस एंड द पॉलिसीज। देन हम देखेंगे वर्कलोड माइग्रेशन, और उसके बाद हम देखेंगे वर्चुअलाइजेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। देन नेक्स्ट हम इसमें हम देखेंगे कंप्यूटर वर्चुअलाइजेशन, ओके, जो कि एक बेसिक मेन कंसेप्ट रहेगा कि किस तरीके से आपको यू कैन इम्प्लीमेंट द वर्चुअल मशीन्स। उसके बाद हम देखेंगे क्लाउड कनेक्टिविटी, हाउ यू कैन गोइंग टू कनेक्ट डिफरेंट क्लाउड्स ऑफ सर्विसेज, किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना। वर्चुअलाइजेशन में हम देखेंगे NFVI, VNF। देन हम देखेंगे नेटवर्क ऑटोमेशन एंड द ऑर्केस्ट्रेशन, जिसमें है Ansible, कॉन्फ़िगरेशन, लिनक्स, नोड्स एंड द पोर्ट सर्विसेज, क्लस्टर, से बहुत सारे टेक्नोलॉजीज है जो हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे सिस्को DNS सेंटर। सिस्को DNS सेंटर जो कि मैं कहूँगा दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑटोमेशन, ओके। इसमें हम फीचर्स देखेंगे, हम इसमें देखेंगे सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है, मॉनिटरिंग किस तरीके से की जाती है, फीचर नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशंस क्या क्या है, ये सारी चीज़ें। साथ ही साथ हम देखेंगे एम्बेडेड सिक्योरिटी क्या क्या है, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट विच इज़ वी आर गोइंग टू सी द SDN, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू द SDN। बहुत सारी चीज़ें SDN में देखेंगे हम, रिले, अंडर रिले और रिले, कंट्रोल प्लेन, डेटा प्लेन एंड द मैनेजमेंट प्लेन, ओके। व्हाट इज़ द साउथ बाउंड, व्हाट इज़ द नॉर्थ बाउंड, व्हाट इज़ द रेस्ट API, वो भी सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे SD एक्सेस। इसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्टरी पार्ट, जिसमें होगा फैब्रिक, DNS सेंटर अप्लायंसेस, DNS सेंटर डैशबोर्ड, डिज़ाइन, पॉलिसीज, प्रोविजन, एश्योरेंस एंड आइडेंटिटी सर्विस इंजन, ओके। और दिस इज़ द लास्ट वन जो मैं लास्ट बूट कैंप कंडक्ट करूँगा। इसमें हम देखेंगे मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग, इंट्रो टू द एक्सपोर्ट, थ्योरी पार्ट कवर करेंगे, प्रैक्टिकल सेशन एज जैसे ट्रैक रहेगा उसके हिसाब से हम देखेंगे। देन हम देखेंगे नेक्स्ट एडेप्टिव सिक्योरिटी अप्लायंसेस विच इज़ द फायरवॉल। नेक्स्ट हम देखेंगे फायर पावर। नेक्स्ट देखेंगे फायर साइड थ्रेट डिफेंस विच इज़ कॉल्ड FTD, वेब सिक्योरिटी अप्लायंसेस एंड ईमेल सिक्योरिटी अप्लायंसेस। देन हम देखेंगे सिस्को आइडेंटिटी सर्विस इंजन, सिस्को वायरलेस लैन कंट्रोलर, सिस्को VPN, IPsec, GRE एंड द MGRE, ओके। देन हम नेक्स्ट देखेंगे BGP वर्जन 4, इंट्रो टू द एक्सपर्ट, ओके। दैट्स अबाउट इट। तो ये सारी चीज़ें हम बूट कैंप सेशन में कवर कर रहे हैं। फ्री सेशन जैसे ही ख़त्म होगा मैं आपको एक्चुअली प्रैक्टिकल सेशंस में बताऊंगा कि हम कौन से टॉपिक्स को हिट करने वाले हैं, ठीक है। वो टॉपिक इसमें इंक्लूड ऐड नहीं किए गए हैं। तो जैसे ये सेशन पूरा ख़त्म हो जाएगा तो नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से नए इम्प्लीमेंटेशन, साथ ही के साथ हम प्रैक्टिकल सेशंस क्या क्या देखने वाले हैं, ठीक है। सो सी यू नेक्स्ट टाइम। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ एडमिशन प्रोसेस के बारे में। अगर आपको एडमिशन लेना है तो बेसिकली यू हैव टू सबमिट योर लास्ट ईयर एग्ज़ाम सर्टिफिकेशन, लाइक आपका डिप्लोमा हुआ है या फिर डिग्री हुई उसके सर्टिफिकेशन लगेंगे, साथ ही साथ आपके फ़ोटोज़ लगेंगे, पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़।
आपका एड्रेस वेरिफिकेशन, आधार कार्ड है तो पूरा मुझे स्कैन करके देना है आपको, और उसके बाद हम एडमिशन प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। ओके, फ्री और फीस का जो डिस्कशन है मैं आपको उसी टाइम बता दूंगा कि किस तरीके से इंस्टॉलमेंट के साथ भी आप पे कर सकते हो। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों भी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। साथ ही साथ ये जो वीडियोस हैं मैं सबके लिए बना रहा हूँ, उन कैंडिडेट्स के लिए भी रहेगा जो जिन्होंने CCNA रिसेंटली कंप्लीट किया है, जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और जो ऑलरेडी जॉब में प्लेस हो चुके हैं, उन सब के लिए रहेगा। मतलब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लैब्स को ऐड कर रहे हैं, वो सारी लैब्स मैं आपको बाय वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स को प्रोवाइड करूंगा जो ऑलरेडी जिन्होंने यहाँ पे एडमिशन लिया है या फिर जिन्होंने ऑलरेडी कोर्स कंप्लीट करके जॉब के लिए हिट किया है। सैटरडे संडे 2 दिन ऐसे रहते हैं जहाँ पे मैं बुट कैम्प ज़्यादातर कंडक्ट करता हूँ सबके लिए, जो ज्वाइन नहीं कर पाते या फिर अटेंड नहीं हो पाते, उनके लिए मैं वीडियो सेशंस बनाता हूँ और ये सारे वीडियोस उन सभी कैंडिडेट्स के लिए इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, सो थैंक यू गाइस।